قسط نمبر 8۔ عزت نے کتے کو پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی اس کے قدموں میں آ گری۔ عزت اور نرگس دونوں لڑکی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ کتے کے مسلسل بھونکنے پر لڑکی بری طرح سے ڈری اور نرگس کے پیچھے جا چھپی۔ عزت نے کتے کو چپ کروایا۔ نرگس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ عزت نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو میری گاڑی میں؟ کیسے تم میری گاڑی میں؟ اتنے میں بارش ایک دم سے دوبارہ تیز شروع ہو گئی۔ نرگس نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی حالت بہت ہی ناساز تھی اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ نرگس اسے اندر لے گئی اور بٹھایا۔ وہ اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ اس نے نرگس کے ہاتھ پوری مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور مسلسل رو رہی تھی۔ عزت بھی اسے دیکھ کر حیران تھا بہت، لیکن خاموش تھا۔ نرگس نے جیسے ہی اس کی چادر اتاری اور اسے دیکھا تو وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں بہت بری حالت میں تھی، چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے اور دانتوں کے نشان گردن پر دیکھ کر نرگس کے ہوش اڑ گئے۔ نرگس نے بے یقینی سے عزت کی طرف دیکھا۔ نرگس کے اس طرح دیکھنے پر وہ اپنی جگہ پر شدے رہ گیا۔ وہ نرگس سے پہلے ہی فوراً بول پڑا، مجھے کیوں اب ایسے دیکھ رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو، کون ہے یہ؟ پوچھیں اس سے۔ نرگس تو اس لڑکی کی حالت اور پھر اس دکھ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ عزت بھی زخمی ہے اور اس لڑکی کی بھی حالت ٹھیک نہیں۔ نرگس کی نظروں میں مسلسل شک دیکھ کر وہ لڑکی کی طرف بڑھا اور بازوہے سے اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا، بتاؤ کون ہو تم؟ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے عزت کو پیچھے دھکا دیا، خدا کا واسطہ ہے مت چھیڑو مجھے، مجھ سے دور رہو۔ نرگس بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی اس لڑکی کا رد عمل دیکھ کر۔ عزت ماں کو دیکھ کر گھبرا کر بولا، امی مجھے نہیں پتہ کون ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نرگس غصے سے بولی، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تم تھوڑی دیر خاموش نہیں رہ سکتے۔ نرگس نے پہلے اس لڑکی کو پانی پلایا لیکن وہ پانی نہیں پی رہی تھی اور مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ نرگس نے پریشانی سے پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو اور کس نے کی ہے یہ تمہاری حالت؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بتائیں گی؟ وہ کیا بتاتی؟ اتنی تکلیف میں رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بمشکل صرف اتنا کہا، آنٹی اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لے، میری مدد کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ عزت پریشانی سے ہڑبڑا کر بولا، امی اس کی باتوں میں نہیں آنا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے اٹھ کر آئی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے گھر کا صفایا کر دے، کہیں اس نے پولیس بلوا لی تو کیا کریں گے ہم، اسے گھر سے نکالی اسی وقت۔ عزت کی بات سن کر وہ نرگس کے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، مجھے گھر سے اس وقت نہ نکال، میں کسی چوری کے ارادے سے نہیں۔ نرگس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہتی اور کیا کرتی، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ امی اس کی بات کیوں سن رہی ہے اب؟ تم چپ رہو، پوچھ لوں گی میں کون ہے، یا تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ عزت کے ڈھیٹ بنے کھڑے رہنے پر نرگس پھر بولی، چلے جاؤ یہاں سے، امی یہ جھوٹ بولے گی، تمہیں کیسے پتا یہ جھوٹ بولے گی یا سچ؟ نرگس نے آرام سے اس لڑکی سے پوچھا، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار یہ ہے کیا؟ نرگس نے اس دکھ طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں خوف و ہراس لیے ایک نظر عزت کو دیکھا، وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، پھر وہ خوف سے لرزتی نرگس سے لپٹ گئی۔ نرگس کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ امی میری بات۔ نرگس بلند آواز میں، چلا دفع ہو جا یہاں سے۔ عزت ماں کو حیرانی سے دیکھ کر بولا، امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا، خبردار اس کو ہاتھ بھی لگایا تو جاؤ یہاں سے۔ عزت غم و غصے کی حالت میں پاہے پٹکتا وہاں سے گیا۔ نرگس اسے کمرے میں لے گئی۔ ڈرو مت بیٹا، تم محفوظ ہو یہاں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ راتابہ۔ کہاں سے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ کیا بتاتی کہاں سے آئے ہیں؟ کو ایک ٹھکانہ ہوتا اس کا تو بتاتی۔ نرگس نے اس کی طرف دیکھا اور بہت پیار سے بولی، بولو بیٹا کہاں سے ہو؟ وہ سر جھکا بولی، نہیں معلوم۔ اس کے آنسو اس کی گود میں گر رہی تھے۔
कपड़ों पर उसके खून देखकर नरगिस का दिल दहल कर रह गया, क्योंकि खून इज़्द की पैंट पर भी मौजूद था। नरगिस ने इसे अपने कपड़े दी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसकी हालत देखकर नरगिस ने इससे कहा, तुम सो जाओ बेटा, सुबह उठ के बात करते हैं। वो दर्द से कराहती एवं लेटी, इसके पाहे भी जख्मी थे। रोते रोते उसे उल्टियां लग गई। नरगिस ने इसे नींद की गोली दी। वो नरगिस का हाथ पकड़कर नींद में बड़बड़ाती कुछ देर में रोते रोते सो गई। अलबत्ता नरगिस और इज़्द दोनों की नींद हराम एवं हजारों वसवसों और ख्यालों के दर्द ने इन दोनों को सोने ना दिया। ऐसी कौन सी लड़ा थी जिस पर इज़्द के हाथों पर चाक और नाखून के निशान थे, और इस लड़की के चेहरे पर भी एविस के बर्बरियत के निशानात चीख चीख कर बता रही थे कि वो मर्द की हैवानियत का शिकार है। सोच सोच कर नरगिस का दिमाग फट रहा था कि इज़्द किसी लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। नरगिस का दिल नहीं मान रहा था। इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई। दूसरी तरफ इज़्द की हालत गैर हो रही थी कि इसकी माँ क्या सोच रही थी। क्यों उसकी माँ ने उसे शक की नजरों से देखा। एक एक लम्हा नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। इस कली भी निमल रात को सोते हुए नींद में बेचैनी से उधर उधर करवटें बदल रही थी कि अचानक चला कर उठी। हाफिज साहिब इसके बराबर वाले बेड पर सो रहे थे। निमल के चलाने पर वो भी उठ गए। क्या एवा निमल बेटा, वो इसके पास निमल गेबुरा एओ थी। बाबा बख्ती, मुझे लगता है वो किसी मुश्किल में है बाबा। निमल रोने लगी। हाफिज ने निमल को तसल्ली दी और कहा, बेटा हम क्या कह सकते हैं, वो बच्ची तो है ही बदबख्त, अल्लाह इसे अपनी अमान में रखे। उठो, फजर की अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ते हैं और उसके लिए दुआ करो, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुबह का सूरज कब का चढ़ चुका था। निमल बहुत उदास और बेचैन थी। दरवाजे की बैल बजी। हाफिज साहिब को गिल्ली के कुछ मर्दों ने बाहर बुलाया। निमल भी पर्दे के पीछे दरवाजे के पास खड़ी है। हाफिज साहिब से सलाम करके अजमत नामी शख्स बोला, हाफिज साहिब आप हमें मुआफ कीजिएगा, लेकिन ये बात करना जरूरी है। आपकी बेटी कैसे गवा एओ कौन लेकर गया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन हाफिज साहिब ये शरीफों का महलवा है और इससे पहले ऐसा वाकया किसी के साथ यहाँ नहीं हुआ। अब की वजह से ये कहानी घर घर हर मोहल्ले में दोहराई जा रही है और हमारे घर भी बच्चियों पर असर पड़ रहा है। अब से गुजारिश है कि अब ये घर ये मोहल्ला छोड़ जाए। वो खामोशी से अजमत को देखते रहे, जिसकी अपनी 4 बेटियां थीं। हाफिज साहिब फिर बोले, अजमत साहिब आपके मुंह से ये अल्फाज सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि आप खुद भी 4 बेटियों के बाप हैं। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये सब मेरा मसला है। अब सबको इस बात से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। और रही बात आपकी गुजारिश की तो जल्द पूरी हो जाएगी। निमल इनकी सारी बातें सुनकर जहर के घूंट पी कर रहे। सुबह हो चुकी थी। नरगिस राबा के उठने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी टाइम गुजरने पर भी वो ना उठी। नरगिस इसके करीब तो देखा वो तेज बुखार से बेसुध पड़ी थी। नरगिस इसकी हालत देखकर मजीद परेशान हो कि वो इस हालत में इसे अस्पताल नहीं लेकर जा सकती थी, वरना इस पर रेप का केस बन जाता। वो इज़्द के कमरे में वो मौजूद नहीं था। वहां काम वाली मास भी नरगिस ने इसे 3-4 दिन की छुट्टी दे दी कि अगर उसने राबा को इस हाल में देख लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता, क्योंकि अभी तक वो खुद इसे नहीं जानती थी। नरगिस ने इसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। बुखार उतरने पर वो कुछ एविश में तो नरगिस को सामने देखकर एकदम से उठी। कुक्कुवन है अब, कहाँ हूं मैं? वो इतनी शाकिर थी कि रात का वाकया भोली एओ थी। क्या एवार ताबा? नरगिस ने इसके सर पर हाथ रखा। मैं राबा नहीं, फिर कौन हो तुम? मैं। सब कुछ याद आने पर वो पागलों की तरह सर पर हाथ रखकर रोने लगी। मैं बदबख्त हूं, बदबख्त। इसके लहजे में उस वक्त इतना दर्द था कि नरगिस को अपना दिल डूबता एवा महसूस एवा। नरगिस ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए। क्या कर रही हो तुम? मुझे मर जाना चाहे था, क्यों जिंदा हूं मैं, क्यों? वो इस कदर दर्द से चलाकर रोके नरगिस भी खुद को रोक ना सकी। इस बिलकती एवं बख्ती को जब इसने गिले से लगाया तो वो मासूम से बच्चे की तरह लिपट गई। नरगिस उसे प्यार से सहलाने लगी। बस बेटा बस,
मामा जी कहाँ हैं आप मामा जी? वो चलाती रही। लटग आपकी बख्ती लटग मामा जी। क्या क्या अपने मुझे मार देते ना, ऐसा ना करते, तन्हा ना छोड़ते मुझे। नरगिस खुद भी रोते एवी इसका रोना सुनती रही। जब वो कुछ संभल तो नरगिस इसकली नाश्ता ला। कुछ खा लो राबा बेटा। राबा नाम नहीं है मेरा। नाम क्या है फिर तुम्हारा? नाम भी बदबख्त है मेरा। इसके रोने पर नरगिस को इस पर बहुत तरस आया। नरगिस ने इसे ढारस दी। अच्छा छोड़ो उन बातों को, कुछ खा लो। वो कुछ भी खाने को तैयार न थी। नरगिस ने अपने हाथों से नवाला इसके मुंह में डाला तो वो और भी ज्यादा रोने लग गई। मुझे दूसरों के हाथों से मार खाने की आदत है, खाना खाने की नहीं। इसकी बात सुनकर नरगिस का दिल उछलकर हल्क में आ गया। नरगिस ने उसे उस वक्त अकेला छोड़ देना मुनासिब समझा। हाफिज साहब ने पड़ोसियों की वजह से वो मोहल्ला ही किया, बल्कि वो शहर ही छोड़ दिया जहाँ उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी थी। यहाँ का मकान बीच कर फी अलहाल उन्होंने हैदराबाद में किराए का मकान देख लिया और निमल को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए। निमल यहाँ आकर बहुत बेचैन और बेकरार थी। उसे बख्ती की याद पिल पिल सताती थी, लेकिन वो इसे मिलने से कासिर थी। इसे नहीं मालूम था बख्ती कहाँ है और किस हाल में। दूसरी तरफ बख्ती निमल को और अपनी हालत को लेकर बहुत परेशान थी। इसे भी नहीं पता था कि निमल कहाँ है और किस हाल में है, जिंदा भी है नहीं। मेरा हाल ये एवा 1 घंटे में, तो निमल का इतने दिनों में क्या हाल एवा होगा। इज़्द पूरा दिन घर से बाहर था। वो मोबाइल भी अपना घर छोड़ गया था। शाम होने को थी। नरगिस बोलाई बोला पूरे घर में फुर्ती रही कि इसका बेटा कहाँ चला गया। दूसरी तरफ बख्ती ने खुद को अपने अब तक महदूद किया हुआ था। वो बिल्कुल चुपचाप गुमसम बैठी रही। क्या हो गया था उसके साथ? गोपाल के घर से निकलकर वो रास्ते का पत्थर बंद। मगरिब की अजान होने लगी। इसके हाथ अपने अब दुआ कली उठे। इसके मुंह से सिर्फ अल्लाह अल्लाह निकलता रहा और आंसू हथेली पर गिरतेगी। इन इंसूहे में ना को शको था ना को शिकायत, बस अपने अंदर बेपना दर्द लिए खामोश आंसू थे जो रब की बारगाह में कबूलियत के मुंतजिर थे। नरगिस अंदर ए और जबरदस्ती उसे जूस पिलाया। कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे तमेरी बारे में? क्या पूछेंगी अब? मेरा नाम, मेरा घर बार, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, कहाँ से हूं मैं, या मेरी इस हालत के जिम्मेदार का नाम? नरगिस चुप एवं। नाम मेरा बदबख्त है, घर बार मेरा को नहीं, माँ बाप कौन है, कहाँ है, जिंदा है या मरगी में नहीं जानती, रिश्तेदार मेरा को नहीं सवा एक मामा जी के जिसने मुझे पाला, इसका भी मुझसे को रिश्ता नहीं। यहाँ एक ज़ारा नामी औरत के पास मुझे कराची से भेजा गया, जिसके पास में सिर्फ 7 दिन रही और अब इस हालत में आपके पास हूं और मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है मैं नहीं जानती। तुमने फिर अपना नाम राबा क्यों बताया था? मेरा मामा मुझे बख्ती कहते थे, लेकिन इस नाम से मैं जहां जहां मुतारफ एव वहां वहां मेरी बदबख्ती मेरे साथ है। असली आपको इस वक्त ये नाम बताया। नरगिस बोली अब कहाँ जाना है तुमने बता दो, मैं ले जानेगी तुम्हें। ना मेरी जमीन वाकिफ बनती है ना फलक साया देता है। बालाए जमी पर तो मेरा को ठिकाना नजर नहीं आता। अब आपके यहाँ से जाने पर जेरे जमी ही मेरा घर मेरा मुंतजर होगा। अब नरगिस सोच में पड़ गई। किया जाए इसका? अगर मैंने इसे घर से निकाला तो बेआसरा बच्ची है, खुदकशी ना कर ले या फिर किसी दरिंदे के हाथ ना लग जाए। नरगिस ने इसे बगौर देखा। तीखे तीखे गंदमी नैन नकूश में इंतहा की मासूमियत और बेबसी थी। नरगिस ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इसे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रख लेगी। इस रात की घर आया वो बनामा से मिले, अपने कमरे में चला गया। नरगिस इसके चे कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान थी जानते हो? वो खामोश रहा। यहाँ देखो मेरी तरफ। नरगिस ने सख्ती से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। मुझे अपने मेरे खुद की तरफ देखने के भी काबिल नहीं छोड़ा। मुआफ कर दो मुझे बेटा, मैंने तुम पर शक किया। इज़्द की आंखों में आंसू थे। अम्मी अपने सोच भी कैसे लिया कि आपका बेटा इतनी गिनानी हरकत करेगा। बेटा कसूर मेरा नहीं, हालात सब तमेरी खिलाफ थे। वो अंगारा होती आंखों से पलटा। अम्मी मेरे हाथ पर जख्म के चंद निशानात ने मेरे जानी होने का सबूत दे दिया। नरगिस रुपड़ी, ना मेरे बच्चे, ना ऐसी बात नहीं।
मेरी जगह को और होता तो वो भी यही सोचता उस वक्त। वो रो पड़ा। अम्मी आपकी जगह को भी होता मुझे परा नहीं थी, लेकिन और की जगह आपने ले ली, इस बात का दुख है मुझे। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरी तरफ नहीं देखोगे? देखने के काबिल नहीं छोड़ा अपने मुझे। गोपाल सिंध में अपने लिए घर ढूंढ रहा था कि वो बाबू से छुटकारा हासिल कर सके, लेकिन इसकी बेटी बिंदिया बाबू से राब्ते में थी। यहाँ की हर खबर वो उसे देती। गोपाल को जब इल्म एवा तो इसने बहुत समझाया अपनी बेटी को, पर वो ना समझी और बाप के बार बार टोकने पर मां से शिकायत कर दी। देवी ने खून लतोड़ा गोपाल को। वो एम शाह की तरह खामोश तमाशा बन गया। इश्क को इंतहा की नफरत थी राबा बख्ती से। इसका बस नहीं चलता था कि वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता। नरगिस के उसे अपने घर में रखने पर वो अब तक नाराज था मां से। नरगिस इग्नोर करती रही कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। राबा दिन बदन नरगिस के दिल में उतरती गई। वो मासूम सी बेजरर सी लड़की अजीज होने लगी उसे। राबा बख्ती ने भी खुर को बहला लिया था कुछ कुछ। इश्क किसी काम से किचन में आया तो बाहर आती राबा इससे बुरी तरह टकरा। राबा को खुद से टकराता देखकर इसका खून खौल उठा। वो उसे कंधों से दबोच कर बोला, अगर दोबारा मेरे सामने भी इना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। वो डरी सहमी पीछे को हटी। वो 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा। दफ हो जा यहां से और जितनी जल्दी हो सके को और ठिकाना ढूंढ लो अपना, ज्यादा दिन में तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इज्द और उसके गुस्से से बहुत खौफजदा हो गई थी। वो जैसे ही घर आता राबा खुद को कमरे में कैद कर लेती। 4 दिन गुजर गए थे। इज्द मां से सिर्फ जरूरी बात करता, लेकिन आज शाम को घर वो बहुत खुशी से लूटा और आते साथ मां को गिले से लगा लिया। नरगिस तड़प उठी उसे अपने सीने से लगाकर। अम्मी मैं बहुत खुश हूं आज, मां सदके जाए मेरे बच्चे तुझ पर। वजह नहीं पूछेंगी, वो नरगिस की गोद में सर रख कर बोला। अम्मी जो इंटरव्यू मैंने हमदानी इंटरप्राइज कंपनी में दिया था ना, वहां से मुझे कॉल आज सुबह। नरगिस ने इसके बालों में हाथ फेरा। उन्होंने तो मना कर दिया था तुझे। जी उम्मी, लेकिन दोबारा बुलाया है उन्होंने कल। अब दुआ कजीगा इस दफा कामयाब हो जाए। वो इसका माथा चूम कर बोले, तो इस बार कामयाब होगा मेरी जान। माँ बेटे का ये प्यार देख राबा की आंखें अश्क बार हो गई। इसका दिल चाहा काश मेरी भी माँ होती, मैं भी किसी की गोद में सर रखती। माँ का वजूद, माँ का प्यार, माँ की गोद कैसी होती है इसे कुछ नहीं मालूम था। जाजुब की बढ़ती बेचैनी देखकर शाजी से रहा न गया। वो असद के साथ निमल के घर जा पहुंचा। गेट पर ताला था। दिल्ली में किसी को रोककर इसने पूछा, ये घर वाले कहाँ हैं? रुकने वाला अजमत था। इतनी बड़ी गाड़ी में इतने खूबरू जवान को देखकर वो हैरान रह गया। घर छोड़कर चलेगी है हाफिज साहब यहां से? कहाँ चलेगी है, कुछ पता है आपको? नहीं जी, कहाँ गी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन क्यों गी है ये मालूम है। शाहजी ने ग्लासेस उतारे। क्यों गी है? बस जी क्या बता है, इनकी बेटी का चाल चलन अच्छा नहीं था, एन शादी से 2 दिन पहले गायब एव थी। शाहजी बोला, लेकिन मैंने तो सुना था वो अगवा एव थी। अजमत बोला, रहने दे साहिब जी, अगवा करने वाले को दूसरी बच्ची नजर नहीं थी, सिर्फ इसी को उठाना था। कौन सी दूसरी बच्ची? शाहजी ने सवाल किया। बख्ती भी थी इसके साथ, ये बराबर वाले घर की बच्ची। शाहजी ने बराबर वाला घर देखा, वहां भी ताला लगा एवा था। ये बख्ती वाले कहाँ हैं? ये भी लगता है घर छोड़ गई है, महीना हो गया घर बंद पड़ा है। शाहजी ने इसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। इज्द आज शाम को जल्दी घर आ गया था। नरगिस नहीं थी घर में। दरवाजा ताबा ने खोला। इसे गेट पर देख वो आग बगूला हो गया। उम्मी कहाँ है? इसकी बुलंद आवाज से वो कांप गई। घर नहीं है, वो बाजार गए हैं। बख्ती जल्दी से अपने कमरे में चली गई। इज्द कुछ देर में इसके पीछे इसके कमरे में दाखिल एवा। राबा कपड़े तय कर रही थी जब इसने पीछे से उसे अपनी बाहों में घेरा। खौफ से वो पलटी। ये क्या कर रही है आप? वही कर रहा हूं जो कुछ दिन पहले किया था। कुक क्या मतलब है आपका? छोड़ी मुझे, इसने खुद को छुड़ाना चाहा। क्यों छोड़ो, तुमने मुझे छोड़ा था इस रात।
खुदा का वास्ता है इस रहम के वाह मुझ पर, नहीं आ सकता मुझे तुम पर रहम। मेरी माँ के सामने तुमने मुझे रुस्वा किया। राबा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इज़्द था जिसके हाथ में लोहा भी मोम बन सकता था। ये तो नाजुक सी कुल्ली थी। वो रोने लगी, प्लीज मत करे मेरे साथ, उस तरह छोड़ दे मुझे। वो इज़्द की बाहों में बन पानी के मछली की तरह तड़पी। इज़्द ने इसका दुपट्टा उतार कर परे फेंका। एक बार तो हो गया ना हमारे बीच ये सब, अब दोबारा होने में कैसा हर्ज, कैसी शर्म। बल्कि अब तो मुझे जब जब मौका मिला मैं यही सब करूंगा तुम्हारी साथ। जारी है किस्त नंबर 9। इज़्द ने इसका दुपट्टा उतार कर परे फेंका। एक बार तो हो गया ना हमारे बीच ये सब, अब दोबारा होने में कैसा हर्ज, कैसी शर्म। बल्कि अब तो मुझे जब जब मौका मिला मैं यही सब करूंगा तुम्हारी साथ। ऐन इसी वक्त नरगिस इस चाबी से गेट खोलकर अंदर दाखिल एओ तो राबा की आवाज सुनकर इसके कमरे की तरफ बढ़ी। आखिरी जुमले इज़्द के वो सुन चुकी थी। जल्दी से वो कमरे में दाखिल हुई और ताबा पर झुके इज़्द को कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा। माँ को देखकर इज़्द सटपटा गया। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तुमने मेरा शक यकीन में बदल दिया है कि इसके मुजरिम तुम ही हो। ऐसा नहीं है उम्मी, में तो सिर्फ उसे डरा रहा था कि यहाँ से चली जाए। अगर मैं ना आती तो डराने में तुम इसका काम तमाम कर देते। नरगिस ने बदहवास होती राबा को देखकर इज़्द के मुंह पर चमट दे मारी। इज़्द सकते में आ गया माँ की चमट पर। अपने इस 2 टके की लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। इसकी बात सुनकर नरगिस ने दूसरी चमट उसे दे मारी। इसका गुस्सा देखकर राबा ने नरगिस के पीछे पना ली। निकलो इस कमरे से बाहर, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूं। इज़्द ने गुस्से से पास बड़ा गुलदान ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारा। शीशा टूटने की आवाज से दोनों डर गए। इज़्द उंगली उठाकर उसे धमकाकर बोला, तुम्हें तो मैं देखूं लूंगा। आज भी वो पूरा दिन घर नहीं आया। नरगिस को परेशान देखकर ताबा बोली, आंटी अब मेरी वजह से परेशान ना हूं, अपने बेटे पर गुस्सा भी ना करे। वो मुझे नहीं करेगा बर्दाश्त कभी भी इस घर में। कल का वो मेरा मुजरिम नहीं था, लेकिन आज उसने मुजरिम बनने की पूरी कोशिश की। जवान बेटा है आपका, कहीं जज्बात में आकर कुछ और ना कर बैठे। इसकी नफरत मुझे भी ले डूबेगी। कल के पछतावे से बेहतर है अब मुझे यहाँ से किसी यतीम खाने में या किसी ट्रस्ट में भिजवा दी। ऐसा नहीं कर सकती मैं। यतीम खानों के हाल से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। वहां तुम्हारी इज्जत रोजदी पर लगेगी। मुझे मालूम है मेरे यहाँ से जाकर तुम जिंदा नहीं रह सकोगी और तुम्हारी खुदकशी की वजह में नहीं बन सकती। तुम यहीं रहोगी मेरे पास मेरे साथ। वो रो पड़ी, आप कब तक रखवाली करेंगी मेरी? इज़्द किसी सूरत नहीं छोड़ेगा मुझे। क्यों आप मेरी वजह से अपने घर का और अपने बेटे का सुकून बर्बाद करती हैं? ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सुकून बर्बाद हुआ है, बल्कि मैं कितनी पुरसुकून हुई हूं तुम्हारे आने से कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारी शक्ल में अल्लाह ने मुझे बेटी दी है और बेटियों को इस तरह घर से नहीं निकाला जाता। मेरा बेटा है, वो उसे अच्छे से जानती हूँ, इतना सख्त दिल नहीं है। वो जिद में आया एवा है मेरी वजह से, इसे मिना लूंगी मैं। रात को वो लूट कर आया। नरगिस ने इसके आगे खाना रखा, उसने खाने से इनकार कर दिया और चुपचाप अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। अस्सलाम अलैकुम, कैसी हैं अब, खैरियत से हैं? अर्जा की आवाज सुनकर नरगिस खुशी से बाहर आई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी बेटी, मेरी जान? नरगिस ने इसे प्यार से गिले से लगाया। तुम कब आई लंदन से वापस और बताया भी नहीं मुझे? अरे आंटी जी, सबसे पहले आपके पास ही हूँ। नरगिस के बुलाने पर ताबा कमरे से बाहर आई। अर्जा इसे देखकर काफी हैरान हुई। ये कौन है आंटी? नरगिस इसे प्यार से अपने साथ बिठाकर बोली, मेरी होने वाली बहू। नरगिस की ये बात सुनकर अर्जा खुशी से उछल पड़ी, जबकि राबा के पैरों तले से जमीन निकल गई। नरगिस ने इन दोनों को मुतारफ करवाया। राबा, ये भी मेरी बेटी समझो, हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। अर्जा बेचैनी से बोली, कब कर रही है आप इस सड़ियल की शादी? जल्दी से कर देना प्लीज, मैं सिर्फ 3 दिन कली हूं। मैं इस नखरू के सर पर सहरा खुद बांधोनेगी। नरगिस को हंसी आ गई उसकी बेचैनी देखकर।
नरगिस ने एनएसटीएवी कहा, चुल्लू कल शॉपिंग कर लेते हैं, इसकी थोड़ी बहुत परसों निकाह। क्या ख्याल है तुम्हारा? राबा इनकी बात सुनकर वहां से चली गई। अर्जा ने नरगिस को गिले लगाकर चूम लिया। मेरे दिल की बात कह दी आपने। चली आज ही चलते हैं ना शॉपिंग पर। नरगिस की ना के बावजूद वो ज़बरदस्ती ले गई। राबा पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रही। शाम को घर आते ही राबा बोली, आंटी ये क्या कर रही है अब? क्यों बेटा, मैं को गुनाह का काम तो नहीं कर रही। कैसे हो सकती है मेरी शादी इज्द से? बिल्कुल ऐसे जैसे सबकी होती है। नहीं आंटी, इज्द नहीं मानेगा, वो बहुत नफरत करता है मुझसे। तुम मान जा, इज्द को छोड़ो। और रही बात इसकी नफरत की, तो निकाह के बाद जल्द ही मोहब्बत में बदल जाएगी। आंटी अब जबरदस्ती नहीं कर सकती इज्द के साथ। वो घर छोड़कर चला गया तो वो दुनिया छोड़ सकता है, मुझे नहीं। एक यकीन सा था नरगिस को अपने बेटे पर, जो उसकी आंखों से छलकता एवा राबा को भी महसूस एवा। सुबह होते ही अर्जा इज्द के सर पर सवार थी। वो गाड़ी धोने में मसरूफ था। हीलो दुल्हे मियां। इज्द ने इसकी तरफ देखा। आप कब ए बिज्जू? बिज्जू के बच्चे, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। सब कुछ तय कर लिया और मुझे खबर तक नहीं की। इज्द हैरानी से बोला, क्या तय कर लिया मैंने? क्या कह रही हैं आप? अर्जा बोली, बस बस रहने दो, ज्यादा बनू मत। आंटी ने मुझे सब बता दिया है। वो पानी की बाल्टी साइड पर रखकर बोला, क्या बता दिया है आंटी ने आपको? अरे तुम तो ऐसे ओवर एक्टिंग कर हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। वो अर्जा की नाक दबाकर बोला, नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मुझे भी तो पता चले। तुम्हारी शादी की बात कर रही हूं, आज शाम निकाह है ना तुम्हारा। काइए ना मेरी शादी? इज्द ने हैरानी से देखा। हैरान तो मुझे होना चाहे, इतने अचानक दुल्हे मियां जो बन रही हो तुम। नरगिस से इसकी बातचीत बंद थी। अर्जा का फोन आया, वो घर चली गई। वो गुस्से से हाँफता हुआ नरगिस के सर पर खड़ा हुआ, ये क्या सुन रहा हूं मैं, क्या कहा है अपने बिज्जू से? नरगिस ने आंखें उठाकर उसे देखा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम तो तमीज भी भूल गए हो बात करने की। वो दांत पेश कर बोला, वो दुल्हा बना रही है मुझे और आप बेवकूफ। नरगिस इसके सामने खड़ी हुई, हाँ बना रही हो मैं तुम्हें दुल्हा। निकाह है आज तुम्हारा। इज्द आंखें फाड़े बेयकीनी से बोला, मेरा निकाह किसके साथ? राबा के साथ। राबा का नाम सुनकर वो हत्थे से उखड़ गया। क्या कहा अपने राबा से, जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता, उसके साथ निकाह? वो भी इज्द शाह का। आप एविश में तो हैं? हाँ मैं होश में हूं, अब तुम भी होश के नाखून ले लो। मेरे लिए वो लावारिस घर से भागी वो लड़की ही रही थी। बकवास मत करो, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस कमजात से शादी नहीं करूंगा। पता नहीं किसके ऐथों खुद को लटवा करे है। नरगिस ऊंची आवाज में बोली, मासूम और बेगुनाह है वो। हाँ बदमाश और गुनहगार में ही हूं, किसी और का थूका मैं नहीं चाट सकता। नरगिस ने इसे चंप मारने को हाथ उठाया, लेकिन रुक। क्यों रुक गए आप? मारी मुझे, बल्कि ऐसा करें जान ही से मार दें तो बेहतर है। मेरा हुक्म है, ये करना होगा तुम्हें निकाह। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं सूली पर लटकने को तैयार हूं, लेकिन राबा के साथ निकाह को हरगिज नहीं। को तमाशा मत करना अब। मैंने सबको दावत दे दी है, अभी कुछ ही देर में घर में मेहमान आ जाएंगे। इज्द कुछ देर नरगिस को देखता रहा, फिर काट देने वाले लहजे में बोला, अगर मैं आपका अपना बेटा होता अब तब भी ऐसा करती। इज्द की बात नरगिस के दिल पर जा लगी। अगर को मेरा बेटा होता तो मैं उसके हक में ये फैसला हरगिज न करती। जारी है किस्त नंबर 10। मैं आपका अपना बेटा होता अब तब भी ऐसा करती। इज्द की बात नरगिस के दिल पर जा लगी। अगर को मेरा बेटा होता तो मैं उसके हक में ये फैसला हरगिज न करती। इज्द की धुआंधार होती आंखों से आंसू बाहर टपक आए और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई। नरगिस ने इसे पीछे से आवाज लगाई, अगर तुमने राबा से निकाह ना किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो फौरन पलट कर देखने लगा मां को। अब चाहती है मैं इसके साथ निकाह करके हक महर में अपनी जान लिख दूं।
नरगिस बोली, हाँ यही चाहती हूं मैं। उसने सर झुका लिया, ठीक है, आपकी मर्जी है। नरगिस की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो जैसे ही इसे गिले लगाने आग बढ़ी, वो कमरे से बाहर निकल गया। निमल बहुत उदास थी। वो हाफिज साहिब को लेकर बख्ती का पूछने अपने पुराने महल ले गई। हाफिज साहिब अपने दोस्त की शॉप पर उतर गई। जैसे ही निमल की टैक्सी अपनी गली के कोने पर रुकी, उसे जन्नत अम्मा ने देख लिया, जो उनकी गली में रहती थी। वो जबरदस्ती निमल को अपने घर ले गई, क्योंकि उसे निमल बहुत अच्छी लगती थी। बड़ा शक किया जन्नत अम्मा ने कि घर छोड़कर चलेगी, और बताया भी नहीं। अम्मा जी आप यहाँ नहीं थी, मैं कैसे मिलकर जाती आपको। अम्मा बोली, हाँ मुझे पता चला बाद में कि तुम्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया गया, और जिन लोगों ने किया आज इनका हाल भी नाकाबिल दीद है। निमल परेशानी से बोली, खैरियत अम्मा, किया एवा। अजमत की छोटी बेटी हुमैरा के साथ बहुत बुरा हुआ, घर आके बैठ गए है। वो बीमार थी, इसका बच्चा होने वाला था। उसकी छोटी बहन सवेरा थी इसके पास। सुनने में आया है इसके बहनों ने सवेरा की इज्जत पर हाथ डाला है। तो नहीं जानती बेटा, क़यामत का मंजर था जब हुमैरा चंद दिन का बच्चा गोद में लिए तलाक लेकर, और दूसरी तरफ सवेरा के पेट में बहनों का बच्चा था। कल ही ये है अस्पताल से। जन्नत अम्मा की बात सुनकर निमल के रोंगटे खड़े हो गए, और अजमत चाचा की आवाज उसके कानों में गूंजी, जो दरवाजे के बाहर गली में उसने निमल के खिलाफ बोले थे। हाफिज साहिब, ये शरीफों का महलवा है, यहाँ इस तरह का वाकया पहले कभी नहीं हुआ। हमारी बच्चियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। निमल की आंखों से आंसू जारी होगी। उसने अपना चेहरा साफ करके जन्नत अम्मा से बख्ती के बारे में पूछा। इनका तो कुछ पता नहीं बेटा, जब से जिंदगी है वापस नहीं। निमल मायूस हो गए। फिर जन्नत अम्मा को अल्लाह हाफिज कहकर अजमत चाचा के घर गए। निमल दस्तक देकर अंदर दाखिल एव तो अजमत चाचा और उसकी बीवी दोनों सहन में चारपाई पर बैठे हुए थे। निमल ने इनको सलाम किया। वो दोनों हैरत से खड़े हो गई। मुआफ करना चाचा, मैं शरीफों के महल्ले में कुछ देर के लिए वापस आई हूं। इसके बाद सुनकर अजमत का सर झक गया। निमल इनके झुके सर को देखकर बोली, चाचा मैं आपको यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई, बल्कि एहसास दिलाने ही हूँ। मुझे पता चला है हुमैरा और सवेरा का बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ उनके साथ? आंटी आपने पूछा नहीं अपनी बेटी से? जबरदस्ती एवा ये सबा, इसमें आपकी बेटी की मर्जी शामिल थी। खैर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आंटी मुझे तो अनजान लुटेरा बंदा उठा ले गया था, जो बाद में मेरा ही मुहाफिज भी बना। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? मैं तो जबरदस्ती ले जा गया, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को खुद अपनी मर्जी से भेजा था ना। नतीजा क्या निकला? एक के बजाय दोनों घर एक वापस। एक घर बार लिटाकर और दूसरी इज्जत। आंटी अपने जो सवाल मुझसे पूछे थे अब अपनी बेटी से नहीं पूछे? क्या क्या कैसे कैसे एवा इसके साथ? शमारो पड़ी, मुआफ कर दो बेटा हमें। आंटी में तो सिर्फ बदनाम एव अब तो बर्बाद भी हो गए। सवेरा का शायद को कसूर ना हो इसमें, लेकिन बेकसूर हुमैरा भी थी, जिसका घर उजड़ गया, जिसका बच्चा बाप के प्यार से महरूम हो गया। बस कर दो बस। शमा ने इसके आगे हाथ जोड़े। आंटी आज ये हाथ मेरे आगे जड़ने से पहले मुझ पर उंगली की सूरत उठ भी चुके हैं। किसी का बुरा हाल देखकर आप लोग उस वक्त सोचते क्यों नहीं कि यह वक्त कल अब पर भी आ सकता है? अजमत रोकर बोला, अब और नहीं सुन सकता मैं। निमल भी रो पड़ी। चाचा कल मेरे बाबा भी ऐसे ही बेबस और मजबूर थे, लेकिन अब सबको जरा भी रहम नहीं आया। चाचा कल हम इस मोहल्ले से निकालेगी थे, अब शायद ये दस्तक अब के दरवाजे पर हो जो कल अपने हमारे दरवाजे पर दी थी। निमल फिर रुकी नहीं, अपने आंसू पोंछती निकले। इसके जाते ही शमा बोली, ठीक ही कहकर गए वो। कल को मैंने ही मजबूर किया था आपको कि 4 बंदे जमा करो और उनसे महल्ला छोड़ने की बात करो। आज मेरी ही तरह को दूसरी औरत सोच रही होगी, लेकिन दस्तक कली अब मेरा दरवाजा होगा। निमल की आवाज इनके पूरे घर में गूंजी। चाचा में तो सिर्फ बदनाम एवं आप तो बर्बाद होगी। मेरे लुटेरे ही मेरे मुहाफिज निकले।
और आपकी इज्जत के रखवाले ही लुटेरे बन गई। असर की अजान हो रही थी। गोपाल ने गाने सुनती बिंदिया को टोका, बेटी अजान हो रही है, कुछ एहतराम सीख लो किसी मजहब का। देवी इसकी बात सुनकर बाहर आई। तुम्हें कब से अजान की फिक्र होने लगी? मुझे लगता है बदबख्त अपना भूत तेरे सर चढ़ा गए। बात बख्ती के भूत चढ़ाने की नहीं, मुसलमान है, आसपास मोहल्लेदारी का लिहाज भी कुछ चीज होती है। देवी हाथ झाड़कर बोली, मैं तो पेशी बदलिहाज हूं, तमेरी अंदर जो लिहाज है ना वो काफी है हमारे लिए। गोपाल गुस्से से घर से चला गया। इसे बख्ती याद बहुत रोया वो असको याद करके। मैं पलटकर तेरी खबर भी ना ले सका मेरी बख्ती, तुझसे ही मेरे बख्त थे सारे। देख तुझे खुद से जुदा करके खुद भी दर्द बादर हो गया हूं। मुआफ कर देना मुझे मेरी बख्ती, मुआफ कर देना। नरगिस राबा को दुल्हन का जोड़ा देने तो राबा ने उसे रोक लिया। आंटी मैं परेशान हूं, बहुत कुछ कहना है आपसे, बाद में बोलना, अभी मेरे पास वक्त नहीं। आंटी बात जरूरी है। अच्छा बोलो क्या एवा? आंटी नहीं हो सकता मेरा निकाह आपके बेटे से। नरगिस ने हैरानी से इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं हो सकता? वो उंगलियां चटखाने लगी। आंटी में? हाँ बोलो क्या में? नरगिस इसके पास एक, मैं मुसलमान नहीं, लेकिन मैं गैर मुस्लिम भी नहीं। नरगिस परेशानी से बेड पर बैठी। राबा उसके कदमों में बैठी। मेरी परवरिश एंदो घराने में एओ थी, लेकिन मैं एंदो भी नहीं। फिर कौन हो तुम? आंटी ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जब भी अजान होती है तो अजान के अल्फाज मेरी रूह तक पुरसुकून कर देते हैं। कहते हैं तकलीफ में इंसान के मुंह से वही नाम निकलता है जिससे वो बहुत करीब होता है। मैंने जब भी किसी को तकलीफ में देखा इसके मुंह से माँ का नाम ही सुना, लेकिन मुझे जब भी को दर्द एवा को तकलीफ पहुंची मेरे मुंह से इंशा अल्लाह का नाम निकलता है। और मेरे मामा जी कहते थे तेरी रगों में किसी मुसलमान का खून है। नरगिस ने नम होती आंखों से इसका चेहरा हाथों में लिया। तुम मुसलमान होना चाहती हो? राबा ने फौरन हाँ में सर हिलाया। तुम्हें कलमा आता है? नहीं आता आंटी, लेकिन इतना मालूम है कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान होता है। नरगिस ने इसका माथा चूमा। देखो बेटा, इंसान जब पैदा होता है ना तो इसका को दीन को मजहब नहीं होता। मुसलमान घराने में पैदा होगा तो बड़ा होकर मुसलमान ही बनेगा। एंदो घराने में होगा तो एंदो। बच्चे को ये इख्तियार नहीं होता कि वो कहाँ पैदा होगा या कहाँ पैदा होना चाहता है। ये तो मेरे रब के काम है कि वो बेदीन को भी हिदायत देकर अपने दीन पर लाए और जिसे चाहे अपने दीन पर रखकर भी गुमराह रखे। जानती हो, जिसे लोग अपना मजहब छोड़कर अपनाते हैं, इस्लाम दुनिया में वाहिद ऐसा मजहब है। लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं बनता इंसान। जब वो कलमे के मतलब को समझे और पूरे दिल से कबूल करे कि अल्लाह एक है और मायमेउद अल्लाह के नबी और रसूल हैं। जी आंटी जानती हूँ, मैं मायमेउद अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन पर कुरान नाजिल एवा। तो क्या तुम उन सब बातों पर ईमान लाती हो कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मायमेउद अल्लाह के आखिरी नबी है, और आखिरत पर भी ईमान लाती हो कि ये जहां फानी है और एक दिन हम सब दोबारा जिंदा कई जाएंगे और रोज क़ियामत अल्लाह के सामने जवाब दे एवेंगे? वो नरगिस की बातों में गुम होगी। जी मैं ईमान लाती हूँ दिलो जान से अल्लाह पर, अल्लाह के आखिरी नबी पर और आखिरत पर, जब हम दोबारा जिंदा कई जाएंगे और अपने हर एक अमल का हिसाब देंगे। और ये भी जानती हूँ इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नरगिस ने इसका हाथ पकड़ा और सवाल पूछा, बताओ तो ए हयात एकंस को कहते हैं? राबा बोली, जिंदगी को। नरगिस प्यार से उसे देखकर बोली, नहीं पगली, ये हयात तो वो होती है नसी, कभी मौत नहीं आती। देखो ना, अल्लाह ताला का एक एक लफ्ज़ हीरे याकूत व मरजान से ज्यादा प्यारा और कीमती और नसीहतों से भरपूर है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता जिंदगी है, बल्कि यूं कहा कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और हयाती तो मरने के बाद शुरू होगी, नसी कभी मौत नहीं आएगी। बेटी, अल्लाह ने जिंदगी दी है हयात को संवारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। तो ये जिंदगी भी भला कोई हयात है जिसको मौत आ जाएगी?
असल तो वो हयात है जिसको कभी जवाल नहीं, कभी मौत नहीं। तो जिंदगी ऐसे गुजारो के हयात सांवर जाए। और राबा जिंदगी में तब पहली बार समझी कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है का असल मतलब किया है, और ये मुश्किलात चंद सांसों की मोहलत तक है। नरगिस ने उसे कलमा पढ़वाया और फिर दिल से लगा लिया। कलमा पढ़कर ताबा की बेकरार और गैल रूह को एक अजीब सा सुकून मिला। साथ में वो निमल को भी याद करने लगी, जिसकी दिली ख्वाहिश थी कि अगर वो को दीन अपनाती है तो फिर दीन इस्लाम ही अपनाए जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अर्जा ने सिंपल सा ताबा को तैयार किया। माशाअल्लाह क्या रूप आया है, हाय गया काम से आज इज़्तिशा। अर्जा ने इसे देखकर हाथ मिले। तुम्हें पता है आज तक इस सड़ियल को बंदी नहीं भाती थी। हजारों लड़कियां इसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन ये किसी को घास नहीं डालता। इतना मिजाज का अकड़ो और सख्त है कि अपनी नाक पर मक्खी बैठना भी गवारा नहीं इस सड़ियल को। लेकिन तुम्हें देखकर दिल हार बैठा वो। तमेरी तलिस्माती हसन ने तो मुझे भी दीवाना कर दिया है। राबा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा। वो दिल पर हाथ रखकर बोली, उफ़ अल्लाह ये जान लेवा मुस्कुराहट। अर्जा की बात पर उसे निमल याद आई। मेरा दिल चाहता है मैं तुझे अपनी देवरानी बना लूं, वैसे भी वली का छोटा बे है। क्या ख्याल है तेरा? निमल ने इसे कोहनी मारी। तेरे ख्याल समेत देवी आंटी ने तेरा कत्ल कर देना है। तेरे प्यार में ये भी मंजूर है मेरी जान। निमल की एनस इसके कानों में गूंजी। इसके आंसू निकल इर्र ये किया तुम रो रही हो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज अभी मत रोना। राबा के आंसू कहाँ थमने वाले थे। फिर उसे वो मंजर भी याद आ गया जब निमल इसकी जिद पर शरारा पहने बाहर आई। वो मज़द रो पड़ी। अर्जा ने घबरा कर नरगिस को बुलाया, लेकिन वो मेहमानों में मसरूफ थी। प्लीज यार चुप हो जा, मेरी सारी मेहनत का बीड़ा गर्क कर दोगी तुम। इज़्द मुझे कच्चा चबा जाएगा कि मैंने इसकी दुल्हन को चुड़ैल बना दिया है। अर्जा के अंदाज पर वो रोते रोते मुस्कुरा। अर्जा को ऐसे लगा जैसे धूप में बरसात हो रही हो। उनकी तजल्लियों का असर कुछ ना पूछिए। वो मेरे सामने थे मगर कुछ ना पूछिए। अज शाम हिजर ताबा सहर कुछ ना पूछिए। अट्टे हैं कैसे चार पहर कुछ ना पूछिए। हो एक रास्ता तो कोई ढूंढे उन्हें, कितनी है उनकी राह गुजर कुछ ना पूछिए। तिनके वो नर्म नर्म से फूलों की छाँव में, कैसा बना था बाग में घर कुछ ना पूछिए। बस अब देख जाइए सूरत मरीज की, निब्जोहे का हाल दर्द जिगर कुछ ना पूछिए। जब चांदनी में आके हुए तो वो मेहमा, तारों भरी वो रात कमर कुछ ना पूछिए। जाजुब का खूबसूरत शायराना अंदाज, ऊपर से तारों भरी रात। सब वाह वाह कर उठे। शाहजी मुस्कुराते एवी बोले, क्या क्या ना क्या तेरे प्यार में हमने सनम। कभी दीवाने कभी कातिल तो कभी शायर बने हम। असद का कहकहा बुलंद एवा, वाह शाहजी वाह। शाहजी जाजुब को अफसुर्दा देखकर बोले, मैं गया था यार तेरी दिलुबा के पीछे, लेकिन वो लोग कहीं और चले गए। जाजुब नीम दराज लेटा एवा था। शाहजी की बात सुनकर उठ बैठा। कहाँ गी वो? शाहजी ने कंधे उचका, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो फिक्र न कर, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। असद बोला, बात उसको ढूंढने की नहीं, पहले ये बात दिमाग में बिठा कि वो तुझे कबूल नहीं करेगी। बड़ी खुदार और निडर लड़की है। शाहजी बोला, क्यों नहीं करेगी कबूल, किया कमी है मेरे शहजादे में? यार कमी नहीं को इसी बात का मसला है। शाहजी इसका पॉइंट समझकर हाँ में सर हिलाने लगा। आमिर रोता मुन बनाकर बोला, मेरे ख्वाब रेजा रेजा। जाजुब ने पास पड़ा गलास उसे एनस्ती एवी मारा। इसने फौरन कीनच किया और गुनगुनाया, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा एवा सौ एवा, वो जो प्यार में होता है। इसकी बुद्धि आवाज सुनकर शाहजी ने इसके मुंह पर हाथ रखा। बस कर यार, तो जब गुनगुनाता है ना तो ऐसे लगता है गधा एना एना रहा है। सब की एनस पर आमिर ने शाहजी पर मुक्कों की बरसात कर दी। वो एनस्ता एवा खुद को बचाते एवी बोला, बस कर यार, खोते मुक्के नहीं लाते मारते। आमिर भी एनस पड़ा।
आरजा का हाथ थामे सीढ़ियां उतरती राबा पर जब नरगिस की नजर पड़ी तो वो इसे हक्का बक्का देखती रह गए। सुर्ख लिबास में हल्के से मेकअप और ज्वेलरी के साथ दुल्हन बनी वो गजब ढा रही थी। नरगिस इसकी बलाएं लेती हो बोली, जाओ आरजा, इसे ड्राइंग रूम ले जाओ, मैं आती हूँ। राबा ने मुड़कर बेरा एव आंखों से देखा नरगिस की तरफ। आंटी एक बार फिर सोच लें अब। नरगिस ने इसे प्यार से तसल्ली देते एवी कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता, मुझे अपने बेटे पर यकीन है, वो कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। नरगिस की बात सुनकर राबा ने सर झुका लिया। आरजा ने ड्राइंग रूम में ले जाकर उसे इज़्तिशा के साथ बिठाया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, जो कुछ लम्हों बाद नरगिस की आवाज से टूटी, मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। मौलवी साहब ने जब निकाह नामे पर राबा का नाम लिखने के बाद इसके वालिद का नाम पूछा तो इसका का दिल उछल कर हल्क में आ गया। इसे तो ये भी नहीं मालूम था कि इसका बाप इस दुनिया में है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। हता कि वो अपने बाप के नाम तक से नावाकिफ थी। राबा के कांपते हाथ और इज़्द की सवालिया नजरों से नजर चुराते एवी नरगिस बोली, अयाज अहमद। अयाज अहमद का नाम सुनकर इज़्द को धचका लगा, क्योंकि वो इस शख्स का नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। अब वो ये कैसे गवारा करता कि इसकी ज़ौजियत में आने वाली लड़की अयाज अहमद की बेटी है। हालांकि इसे इल्म था कि वो अयाज अहमद की बेटी नहीं, फिर भी इसका नाम सुनकर बमुश्किल इसने अपने गुस्से पर काबू पाया। निकाह में जब नाम पुकारा गया राबा का इज़्तिशा के साथ, तो निहायत नागवारी और बेबसी से इसने नरगिस की तरफ देखा। मौलवी साहिब के तीसरी बार पूछने पर भी इसकी खामोशी न टूटी तो नरगिस के जुड़े हाथ देखकर वो अपने आंसू हल्क में उतार कर बोला, कबूल है, इसकी कबूल है। मैं इसका चीखता एवा इनकार घूंघट में बैठी राबा को साफ सुना दिया। इसे यूं लगा जैसे बाजार में पड़ी वो को मामूली सी चीज थी जिसे जबरदस्ती खरीदार पर सस्ते दामों बेचा गया हो। आज पहली बार अपने नाम के साथ दो नाम एक साथ जुड़े सुनकर इसका दिल दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया। इसे इतना भी एविश ना रहा कि कब इसने निकाह कैली हाँ कहा, कब दस्तखत कई और कब वो इज़्तिशा के कमरे में ला गए और फूलों की सेज में बैठे एवी। इसे आधी रात गुजर चुकी थी एविश की दुनिया में। वो तब जब इस कमरे में दाखिल होकर उसके सर पे खड़ा होकर चलाया, उठो मेरे बिस्तर से। राबा इसकी आवाज पर सटपटाकर उसे देखने लगी। इसकी बड़ी बड़ी सिया आंखों में वो झांक कर बोला, तुमसे कह रहा हूँ उठो मेरे बिस्तर से। इसके दूसरी बार कहने पर राबा अपनी भारी फिराक संभाल कर उठ खड़ी है। वो उसे गेट की तरफ इशारा करके बोला, निकलो मेरे कमरे से बाहर। इज़्द की बात सुनकर इसकी आंखें मज़्द हैरत से फैल गईं और वो सहम कर बोली, कुकक क्या मतलब। वो निहायत नफरत से दांत चबाकर बोला, क्यों तुम्हें उर्दू नहीं आती कि अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर जाने का मतलब भी समझाऊं। राबा इससे डर कर 2 कदम पीछे हटी। मम्मी मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, मेहमान है किसी ने। अभी इसने बात पूरी ही नहीं की थी कि वो इसकी बात काटते एवी बोला, इससे पहले कि तुम्हें इस कमरे से धक्के देकर बाहर निकालो खुद निकल जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए। शादी की पहली रात थी और मेहमानों से घर भरा एवा था। इसे कुछ समझ न आई तो कुछ लम्हों बाद वो निहायत बेचारगी से बोली, मैं खुद नहीं, आपके कमरे में उम्मी ने यहाँ लाया मुझे। वो हिकारत भरे लहजे में एक एक लफ्ज चबाकर बोला, मेरी माँ है वो तुम्हारी नहीं। इज़्द के गुस्से से सहमे एवी लहजे में बोली, मुझे मालूम है वो माँ है आपकी, लेकिन मैं भी गैर नहीं आपकी बीवी। अभी बीवी का लफ्ज इसके मुंह में ही था कि इज़्द ने इसे जोरदार थप्पड़ दे मारा। जारी है।